Jai Hind everyone. I, Lieutenant Kavish Yandar. I welcome you all to Centurion Defense Academy. And today's topic is going to be one of the most favorite topics of, I believe, that maximum of the aspirants, like especially those who are aspiring to join army. Okay, उनके लिए रहता है. And in Navy as well and in the Air Force as well, especially those who are opting for ground duties, उनके लिए. So that is the Special Forces of India. अब स्पेशल फोर्सेस का तो क्रेज आई थिंक इंडिया के अंदर बढ़ गया आफ्टर दी उरी मूवी. ओके, लाइक एवरीबॉडी वाज दैट दैट मरून बेरे. बट एग्जैक्टली स्पेशल फोर्सेस है क्या? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? एंड प्राइमरली लाइक वी नो दैट आर्मी हैज़ इट्स ओन SF, एयरफोर्स हैज़ नो SF, नेवी हैज़ इट्स ओन SF. ओके, इनके अंदर लाइक डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज दैट मेजर डिफरेंस? सो Indian Special Forces, elite warriors. I think there's no doubt about it that the SF, they are the main tip of the spear which we call. Understand that what is the difference when we talk about a commando or when we talk about the special forces and दूसरी forces में फ़र्क क्या है? Okay. Primary जो आपका फ़र्क आएगा, firstly is the fitness. You, in order to be into the special forces, you need to be primarily a good soldier. Okay, that is एक सोल्जरिंग का जो एक लेवल होता है, दैट द कन्वेंशनल एस्पेक्ट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए. कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग हैज टू बी देयर. ओके, उसके बियॉन्ड, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट स्पेशल फोर्सेस, सो यू आर गिवन स्पेशल मिशंस, स्पेशल टास्क, यू आर गिवन स्पेशल इक्विपमेंट टू अकम्प्लिश दो स्पेशल टास्क. आपको कन्वेंशनल सिनारियो के अंदर नहीं डाला जाएगा. एक्सट्रीम फिटनेस, एडवांस कॉम्बैट, मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिज्म. इन ऑर्डर टू ज्वाइन दी SF इटसेल्फ, आपका एक पहले बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बिफोर यू आर इवन अलाउड to apply for the probation. There are certain parameters like you should be able to do minimum this many chin-ups, you should be able to run 5 kilometer in so and so time. तो वो आपके टेस्ट होता है. You need to have that base fitness. Because when you go for the probation, आपको वहाँ पे अच्छे से तोड़ दिया जाएगा, both physically and mentally. Now anybody who, in spite of suffering both physically and mentally, but still keeps on going that नहीं, one step more, that keep on delaying the attitude पे, यार no, I need to quit, okay, or I need to give up, वो जो है उस चीज़ को डिले करता रहता है. ठीक है. अब जनरली होता क्या है कि दैट एज एन एस्पिरेंट आप लोग जनरली क्या चालू करते हो कि दैट जो काम है कि दैट हाँ पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई डिले करते रहते हो. ओके, बट इफ़ यू वांट टू जॉइन SF तो फिर आपको उल्टा होगा, आप रेस्ट जो होगी आपकी वो आप उसको डिले करते रहोगे. फिर दैट नहीं, रेस्ट और थोड़ा आधे घंटे बाद, नहीं 15 मिनट, नहीं 5 मिनट और, 5 मिनट और. ओके, so that is the separation between those who are aspiring to join SF. First, we will talk about the para special forces. Okay, so that is para special forces is the SF component of the army. अब आपके मन में डाउट आएगा NSD. NSD primarily comes under the Ministry of Home Affairs. Okay, it's a deputationist force. Deputation यानी कि you apply, you clear the probation, okay, you will be part of the NSG anything between 2.5 to 3 years. उसके बाद you will be rotated back to your parent unit. For example, if you are an armored corps officer, okay, आपने NSG probation clear किया, उसके बाद 3 साल बाद वापस चले जाओगे. However, when we talk about para SF, that is not a deputationist force. You clear the probation, you are absorbed into the para SF. But keep in mind, during service, if even after clearing probation, even if you put in 3 years, 4 years, 5 years of SF tenure, okay, you are now degrading in standards. Okay, या फिर आप you are not up to the mark, like over the time, now अब ना धीरे धीरे आपका downgrade चालू हो गया. So you will be sent back to your parent unit. Like example, if you were, let's just say, from 13 JACRF and 13 JACRF say you cleared your probation, went into 1 para SF. Okay, you served, clear your probation, did operation 1 para SF, but 5 साल बाद कोई इंजरी होगी, let's just say आपको during operation कुछ हो गया. Okay, now you are a category, so you will not be kept into 1 para SF, you will go back to 1 para. The only thing, the difference will be that you will still retain that Balidan badge on your uniform and you will retain that maroon beret. However,
द स्पेशल फोर्सेस टैब जो आपकी यूनिफॉर्म में यहाँ पे लगेगा वो हट जाएगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो पैराशूट रेजिमेंट का जो लोगो लगा होता है मरून बेरे में वो हट जाएगा, उसकी जगह को वापस आपका जैकरिफ वाला या आपकी जो भी पेरेंट रेजिमेंट है उसका दैट लोगो विल कम इन। अब की रोल्स, काउंटर टेरर ऑपरेशंस, सर्जिकल स्ट्राइक, हॉस्टेज रेस्क्यू, इंटेलिजेंस गैदरिंग। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैरा एसएफ की ना बहुत सारी बटालियंस है एंड दे आर प्राइमरली दे हैव सम स्पेशल यूनिट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट 4, 9 दे आर दी दैट गोस्ट हंटर्स ऑफ द कश्मीर वैली। वो कश्मीर में अगर ऑपरेशन कराना है व्हेन एवरीवन इज फेलिंग 4 and 9 इज कॉल्ड। सिमिलरली डेजर्ट ऑपरेशंस के अंदर महारत जो है दैट इज ऑफ 10 पैरा एसएफ, 21 पैरा, 12 पैरा, 23 पैरा, दे आर नोन फॉर दी ऑपरेशंस इन द जंगल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। वो वहाँ के धुरंधर हैं, ठीक है। सो ईच बटालियन हैज इट्स ओन स्पेशलिटी, हाउएवर दे कॉन्स्टेंटली यू विल बी सेंट टू द कश्मीर वैली टू डू दी ऑपरेशंस, ओके। वो आपकी टीम्स वहाँ पर डिप्लॉयड कॉन्स्टेंटली होते रहेंगी। ये जो स्पेशलिटी आपको बताइए दे प्राइमरली अगर फुल स्केल वॉर अगर छिड़ जाएगी तो एग्जाम्पल के तौर पे लाइक ड्यूरिंग 1971 वॉर 10 पैरा कमांडो, दैट टाइम नोन एज 10 पैरा कमांडो, नाउ 10 पैरा एसएफ, they used vehicle mounted insertion into Pakistan and destroyed their artillery guns and came back. They went in approximately 20-30 kilometers. You can search about it, Chachro raid, okay, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। So that was done. That is a speciality of the 10 para. Deserts के अंदर they can conduct operations. Now when it comes to the term surgical strikes, okay, ये उरी मूवी के बाद थोड़ा सा फेमस हो गया, but technically the word is wrong. When you talk about surgical strike, it is basically primarily denoted by the Air Force because you are destroying targets which are of strategic importance. Okay, दुश्मन का दैट स्ट्रैटेजी जो उसने बनाई है, आपने एयरक्राफ्ट गोस डिस्ट्रॉयज अ ब्रिज, एयरक्राफ्ट गोस और डिस्ट्रॉयज क्रिटिकल एम्यूनिशन डेपो। सो दैट बेसिकली स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स पे जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। बट प्राइमरली व्हेन वी टॉक अबाउट पैरा एसएफ, ओके, दे आर डीलिंग विद व्हाट वी कॉल इज द टर्म रेड, ओके, ये रेड मारते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कन्वेंशनल इन्फेंट्री जो है अगर जब जंग छिड़ती है कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर तो लाइक वी विल गो, ओके, हिट द एनिमी एंड वो जो ग्राउंड है, ओके, उसको वहां पे हम कैप्चर करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो दुश्मन को बर्बाद करना और जिस जगह पे दुश्मन बैठा था उस जगह को होल्ड करना और प्रिवेंट करना कि दुश्मन वापस वो जगह छीन ना पाए हमसे, वो एक इन्फेंट्री का काम होता है कन्वेंशनल सिनेरियो में। बट जब हम रेड की बात करते हैं तो रेड इज प्राइमरली आप दुश्मन को हिट किया आपने पर आप ग्राउंड होल्ड नहीं करोगे, आप वापस आ जाओगे। सो दैट थिंग इज नोन एज रेड, ओके। सो लाइक प्राइमरली जिस तरह हमने पीओके में जो टेररिस्ट कैंप हमने डिस्ट्रॉय किए थे यूजिंग 4 and 9 पैरा एसएफ, दे आर नोन एज रेड, ओके। सो सर्जिकल स्ट्राइक जो टर्म है वो थोड़ा मूवी की वजह से हो गया, बट एक्चुअल द टर्म इज नोन एज रेड, ओके। सो द मोटो is men apart, every man an emperor, which was given by Winston Churchill by the heroics of the parachute regiment in World War II. कुछ सपने सिर्फ करियर नहीं होते, कुछ अपने राष्ट्र सेवा की पहचान बनते हैं। वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए। टॉपर्स की पहली पसंद, रक्षा क्षेत्र की पुख्ता तैयारी के लिए प्रख्यात, भारत के रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता देने वाला संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। लगातार AIR 1, 2, 3 एवं टॉप रैंकर्स देने वाला संस्थान। NDA, CDS, AFCAT, MNS, SSB इंटरव्यू एवं फाउंडेशन कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी। चीफ डिफेंस एग्जाम मेंटोर एवं साइकोलॉजी एक्सपर्ट शिशिर दीक्षित सर और उनकी प्रोफेशनल टीम ऑफ मेंटोर्स के मार्गदर्शन में, जहां तैयारी सिर्फ परीक्षा की नहीं, नेतृत्व, अनुशासन और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की होती है। एडमिशंस ओपन नाउ। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। टॉपर्स बनने की नहीं, ऑफिसर बनने की तैयारी।